Hello students, today I shall teach Macbeth written by William Shakespeare. I have explained Act 1, Scene 1 to 6 on my previous video. Please check. So I shall continue with Act 1, Scene 7. The same, a room in the castle, hot boys and torches enter and pass over the stage, a sewer and drivers, servants with dishes and service. Then enter Macbeth. यहाँ पे मैकबेथ के रूम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपका. वहाँ पे हॉट बॉयज़ है, टॉर्चेस है, फिर वहाँ पे सर्वेंट्स आए हैं डिशेस लेकर. आपको पता है, जैसे आप पहले की सीन्स आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किंग डनकन मैकबेथ के कासल्स में आए हैं एज अ गेस्ट. Macbeth. If it were done when it is done, then it were well. If it were done quickly, if the assassination could trammel up the consequences and catch with his Sir E's success, that but this blow might be the be all and the end all. Here, but here upon this bank and shoal of time, we would jump the life to come. But in these cases, we still have judgment here, that we but teach bloody instructions, which being taught return to plague the inventor. His even-handed justice commends the ingredients of our poisoned chalice to our own lips. Students, I shall explain you. Here, after the banquet in this castle, we find Macbeth pondering over the risk and consequences of his contemplated assassination of Duncan. Students, please note, contemplated here means think deeply. यहाँ पे जैसे हमारे मैकबेथ की कासल्स के बारे में आपको पता है कि यहाँ बात हो रही है, वहीं पे मैकबेथ अपने रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं. जो असैसिनेशन किंग डनकन को मारने के बारे में वो सोच रहे हैं, बहुत ही डीपली सोच रहे हैं. इफ़ देयर वर एन एंड ऑफ द मैटर एज सून एज द क्राइम वॉज कमिटेड, वो सोच रहे हैं कि अगर कोई एंड होता मैटर का, कि जैसे हम लोग क्राइम किए और वो मैटर एंड हो जाए, इट शुड बी डन विदाउट एनी डिले. तो ऐसा होता तो कोई भी क्राइम बहुत ही फास्ट में हो जाता. इफ द अकम्प्लिश्ड किंग killing could catch as if in the meshes of a net and arrest his terrible consequences and then secure to him upon Duncan's death absolute success, he would not hesitate to commit the crime. Students, please note, meshes here means network of wire. यहाँ पे वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर ये सारे चीज़ों, अगर मैं क्राइम करूँ और ये नेट में आके फंस जाए और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही ख़त्म हो जाए और मुझे सक्सेस भी मिल जाए, तो मैं ये काम करने से इतना हेसिटेट, इतना सोचूंगा, इतना घबराऊंगा नहीं. इन फैक्ट, इफ ही वर एट लीस्ट assured that he would be able to evade all the repercussions ensuing from the murder in this life. Students, please note, evade here means escape by trickery and repercussions here means unintended consequence, which is nothing but a narrow bank in the vast ocean of eternity. He could not bother about what may happen to him in the future life or what punishment may await him after death. यहाँ पे वो यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर उनको इतना भी अश्योरेंस कोई दे दे कि वो सारी, मतलब ये जो कमिट वो क्राइम करने जा रहे हैं, इससे वो खुद को अपने से बाहर निकाल सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी. ऐसा उनको लगता है कि ये उनकी जो कर्म है, उनके जो बुरे काम हैं, वो एक वास्ट ओशन में एक नैरो बैंक की तरह है. तो वो तब भी इतना नहीं सोचते कि उन्हें फ्यूचर लाइफ में क्या होगा और उनकी पनिशमेंट्स भी क्या होगी, वो तब भी नहीं सोचते. But Macbeth is aware that human beings always receive punishment on the earth itself
मैकबेथ ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर इंसान को इसी धरती पर ही पनिशमेंट मिलती है फॉर देयर एक्शंस, उनके कर्म की वजह से। द ब्लडी पर्पसेस विच दे एंडेवर टू अकम्प्लिश रिबाउंड ऑन द डूअर्स एंड ब्रिंग mental torture to them. Students, please note, endeavor here means try hard to achieve something and rebound means bounced back. मैकबेथ ये जानते हैं कि जो पर्पस, जो गलत काम वो कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ पाने के लिए, वो उन्हीं पर जो करता है उन्हीं के ऊपर ये चीज़ वापस आता है, बाउंस बैक करता है और उन्हें मेंटल टॉर्चर भी बेयर करना पड़ता है। There is an impartial element of justice which ensure that the poisoner himself drinks the poisoned wine. ये दुनिया का कानून है कि जो पॉइजन डालता है लास्ट में उससे ही वो पॉइजन का ड्रिंक पीना पड़ता है। Critical comments. Macbeth's introspective and analytical nature. Students, please note, introspective here means examinations of one's own mental. यानी कि वो अपने खुद की मेंटली को जज कर रहे हैं और उनके एनालिटिकल नेचर इज एविडेंट इन दीज लाइन्स। ये इस लाइन में काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। ही कैन नॉट डिसाइड टू एक्ट हैस्टिली विदाउट गिविंग अ थॉट टू द कॉन्सिक्वेंसेज। वो सिर्फ किसी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते बिना इसे एक थॉट दिए, बिना इसे इसके बारे में सोचे। ही इज एक्सपीरियंस इनफ टू रियलाइज that one's misdeeds have a habit of rebounding on oneself in this very world. उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो बुरे काम जो लोग करते हैं उन्हें उनका कर्ज, उनका भरपाई उन्हें इसी धरती पर ही करके जाना होता है। ये नहीं कि मरने के बाद उनके साथ बुरा होगा, वो नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ ये नहीं, उन्हें अपनी इसी लाइफ में ही सब कुछ का कर्ज चुकाना पड़ता है। इन हिज वेइंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, और वो वेट कर रहे हैं कि उनकी वो जो डीड्स करने जा रहे हैं उनसे उनको क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ेगा। मैकबेथ इज अ कॉन्ट्रास्ट टू हिज वाइफ। मैकबेथ फुली डिफरेंट है अपनी वाइफ से। वी ऑल्सो फाइंड दी लाइन्स इमेजिनेटिव एंड पोइटिकल। आपको ये जब आप ये लाइन्स रीड कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेक्सपियर ने कितनी अच्छी तरीके से ये लाइन्स को एक्सप्रेस किया है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैकबेथ्स कैरेक्टर, और मैकबेथ जो है पोइटिकल हो गए हैं तो ये मैकबेथ का एक कैरेक्टर को ही दिखाया जा रहा है। मैकबेथ इज असेल्ड बाय थॉट, by doubts and uncertainties about the course of action he is to adopt. Students, please note, assailed here means violent attack. ये जो अटैक वो करने जा रहे हैं वो जानते हैं कि उनकी जो आगे वो काम करने जा रहे हैं वो उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। He is here in double trust. First, as I am his kinsman and his subject, strong both against the deed, then as his host, who should against his mother shut the door, not bear the knife myself. Besides this, Duncan hath borne his faculties, so meek hath been so clear in his great office, that his virtue will plead like angels, trumpet-tongued against the deep damnation of taking off. And pity like a naked newborn babe striding the blast, or heaven's cherubims upon the sightless couriers of the air shall blow the horrid deed in every eye, that tears shall drown the wind. I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, which overleaps itself and falls on the other. Soliloquizing on the purposed murder of Duncan, Macbeth is contemplating the pros and cons of such an act. मैकबेथ ये सॉलिलोकी में बता रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा मैकबेथ के डंकन के डेथ के बाद। Duncan's position is Macbeth Castle strongly forbids murder on 2 counts. डंकन जो अभी आए हैं मैकबेथ के कासल में, उन्हें 2 चीज़ उनके मर्डर से रोक रही है। फर्स्टली, मैकबेथ इज डनकन्स कज़न। पहला जैसे आपको पता है कि मैकबेथ जो है वो डनकन्स के कज़न है, एंड इज सब्जेक्ट, उनके किंग भी है वो। सेकेंडली, ही इज डनकन्स होस्ट, और वो अभी डनकन के होस्ट हैं। हु शुड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट हार्म रैदर देन स्टैब हिम विथ हिज ओन हैंड। उन्हें अभी अपने मेहमान की हिफाजत करनी चाहिए, ना ही कि वो खुद अपने मेहमान को मार डालें।
Furthermore, Macbeth is aware that Duncan is a noble king who has wielded his royal powers with mildness and correctitude. वो ये चीज़ भी जानते हैं कि डनकन एक बहुत ही अच्छा किंग है, यानी कि वो ऐसा नहीं कि अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, वो अपने लोगों पर अपनी पावर अपने लोगों पर सही इस्तेमाल करते हैं और अपने लोगों की भलाई सोचते हैं. डनकन वर्च्यूज विल स्पीक फॉर हिम लाइक एंजल्स, और डनकन के जो अच्छे कर्म हैं वो उनके लिए एंजल्स उनके लिए स्पीक करेंगी. With clear and penetrating trumpet-like voices against the hellish action of murdering him. और जो मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ उसके खिलाफ एंजल्स भी बोलेंगी. If Duncan is murdered, muses Macbeth, pity will fill the minds of the people. Students, please note, muses here means absorbed in thought. यहाँ पे डनकन के मर्डर के बारे में सोच के मैकबेथ पूरा ही अपने थॉट्स में खो गए हैं और वह ये सोच रहे हैं कि लोगों के दिल में रहम इतनी ज़्यादा भर जाएगी और वो मैकबेथ पर्सोनिफाइड पिटी. मैकबेथ यहाँ पे पिटी यानी कि रहम को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उन्हें एक इंसान का रूप दे रहे हैं. एंड कंपेयर्स इट टू अ हेल्पलेस इनोसेंट बेब डेड जस्ट आफ्टर इट्स बर्थ. वो उसे एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह कंपेयर कर रहे हैं जो अपने पैदा होने के साथ ही जिसका डेथ हो जाता है. बी वेलिंग सॉफ्ट वॉइस ऑन इट्स हार्ड feet while riding upon the wind. Students, please note, bewailing here means expressing great sadness. जो अपना बहुत ही ज़्यादा दुख दिखा रहा है riding upon the wind, और वो अपने जब वो वापस जा रहा है तो अपना दुख दिखा रहा है. वैसे ही उनको लग रहा है कि डनकन्स की मर्डर के बाद ऐसे ही जो है लोग इतनी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे. देन मैकबेथ कंपेयर्स पिटी टू हेवेंस लिटिल एंजल्स, और फिर वो पिटी को कंपेयर करते हैं हेवेंस के एंजल से. हु फुल ऑफ लव एंड कंपैशन फ्लिटिंग थ्रू द एयर एंड कॉलिंग डाउन वेंगेंस ऑन द सिंस ऑफ द वर्ल्ड. और वो स्टूडेंट्स प्लीज नोट, वेंगेंस हियर मीन्स पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, और उनकी जो गलत कर्म है उनकी वजह से जो है लिटिल एंजल्स जो है फुल ऑफ कंपैशन के साथ will proclaim the diabolical deed all over the world, और एंजल्स पूरे वर्ल्ड में जाके ये डीड्स के बारे में बता देंगी. In other words, the storm of indignation. Students, please note, indignation here means anger for an unfair treatment, और जो मैं unfair treat कर रहा हूँ यानी जो गलत काम करने जा रहा हूँ डनकन के साथ, that will arise in every heart and the murder will be overwhelmed in a downpour of tears over the king's sad and tragic fate. और किंग्स के ऐसे फेट के वजह से ऐसा उनके ये दुख को देखकर पूरी दुनिया में सारे लोग रोएंगे और सबके दिलों में ये मर्डर एक खौफ की तरह बैठ जाएगा. Thus, after viewing the contemplated murder in all its aspects, Macbeth comes to the conclusion that there is no other incentive to goad him to the crime but his inordinate ambition. Students, please note, goad here means provoked and inordinate here means excessive. उन्हें सिर्फ ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई कि कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्हें ये बुरे काम करने के लिए उकसा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ है उनका एम्बिशन जो उन्हें किंग बनना है. एंड एक्सेसिव एम्बिशन इज लाइक एन ओवर ईगर इम्पल्सिव हॉर्समैन, और वो ये भी कह रहे कि जब एक्सेसिव जो एम्बिशन होता है वो एक ओवर ईगर हॉर्समैन की तरह, यानी कि जो हॉर्समैन जो हॉर्स राइड करते हैं, हु मिसेस हिज सीट एंड फॉल्स ऑन द अदर साइड एज ही ट्राइज टू लीप rashly into his saddle. Students, please note, leap here means jump with great force and saddle is the seat on the back of a horse. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा एम्बिशन वो सिर्फ उन्हीं हॉर्समैन्स के होते हैं जो जल्दबाजी में सैडल में बैठने की जगह वो दूसरी तरफ वो गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दबाजी इतनी ज़्यादा होती है. तो मेरा ये एम्बिशन मुझे कहीं ना कहीं ले ना डूब जाए. Critical comments. Macbeth's complex character is further revealed in this line. और हमें और अच्छे से पता चल रहा है कि मैकबेथ का कैरेक्टर कैसा है. His introspective nature leads him to foresee the consequences of rash action. और ये उनका जो नेचर है ये उन्हें आगे फ्यूचर देखने की हेल्प कर रहा है और उन्हें समझा रहा है कि उनका ये जो वो काम करने जा रहे हैं वो कितना गलत है. He is innocent to admit that the only spur to his diabolical intention is his ambition and he is aware of the pitfalls in giving in to the temptation.
Students, please note, spur here means a thing to prompt someone and pitfalls here means unsuspected danger. ये जो उनके जो सोच में आ गया है कि वो इतने, क्योंकि यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है और वो अपने इसको एडमिट कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ उन्हें जो है उन्हें उकसा रही है, वो उनका एम्बिशन है और वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोच रहे हैं. मैन ऑफ इंटेलेक्ट एज वेल एज पावरफुल, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी और बहुत ही पावरफुल है इमेजिनेशन. हिज लाइन्स आर एलोक्वेंट फॉर द पोएटिकल क्वालिटी एंड विजुअली स्टिमुलेटिंग इमेजेस. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एलोक्वेंट हियर मीन्स फ्लुएंट. और ये सारे आपके सारे दिमाग में आपके सारे ये इमेजेस भी आ जाएंगे और ये पोएटिक क्वालिटी के लिए बहुत ही बेस्ट है ये सारे लाइन्स. एंटर लेडी मैकबेथ. हाउ नाउ, व्हाट्स न्यूज़, क्या न्यूज़? लेडी मैकबेथ, ही हैज़ ऑलमोस्ट सप्ड. वाई हैव यू लेफ्ट द चेम्बर? वो तो खाना खा लिया, तुम चेम्बर से क्यों बाहर आ गए? मैकबेथ, हैड ही आस्क्ड फॉर मी? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? लेडी मैकबेथ, नो यू नॉट, ही हैज़. तुमको नहीं पता कि उसने तुम्हारे बारे में पूछा? मैकबेथ, वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस. ही हैड ऑनर्ड मी ऑफ लेट and I have bought golden opinion from all sorts of people, which would be worn now in the newest gloss, now not cast aside so soon. मैकबेथ यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो अभी प्लान बनाया है किंग डनकन को मारने का, मैं उसमें और आगे नहीं जाऊँगा. मुझे उसने अभी ही बहुत ही रिसेंटली मुझे बहुत सारे ट्रिब्यूट्स दिए हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे सराहा है, प्यार किया है और मैं इस पॉपुलैरिटी को, इस अपने फेम को मैं इतनी जल्दी नहीं खोना चाहता और ना ही इतनी देर भी, इतनी ज़्यादा दिन भी नहीं हो गई है कि मैं इसे इतनी जल्दी उठाकर फेंक दूँ. तो मुझे अपनी इसी न्यू टाइटल को मुझे अभी इंजॉय करना है. लेडी मैकबेथ, व्हाट्स द होप ड्रंक wherein you dressed yourself? Had it slept since? And wakes it now to look so green and pale? And what it do so freely? Students, I shall explain you these lines. Here we find Lady Macbeth set to work to conquer her husband's irresolution about murdering Duncan. अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है कि लेडी मैकबेथ अब अपने हस्बैंड के जो इरेजोल्यूशन हैं, जो अपने अपने प्लान से भटक रहे हैं, उन्हें कैसे मर्डर के लिए ले आ रही हैं. व्हेन मैकबेथ टेल्स हर दैट ही कैन नॉट गो अहेड विद द प्लान ऑफ किलिंग द किंग, जब जैसे मैकबेथ उन्हें बताते हैं कि वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं, लेडी मैकबेथ स्टार्ट लैशिंग एट हिम विद हर फियरी स्पीचेस. और वो काफ़ी अपने कड़क स्पीचेस से उन्हें अपनी तरफ खींचती हैं. First, she asks him if his cherished hope of usurping the throne of Scotland was nothing but a drunkard's fancy. तुम्हारा जो, पहले वो उनसे पूछती हैं, क्या तुमने शराब पीकर अपने, जैसे शराबी लोग जो कुछ भी बोल देते हैं अपने शराब के धुन में, क्या तुम्हारा जो स्कॉटलैंड को पाने का जो सपना था, क्या वो इसी तरह था? एंड इफ इट हैड बीन स्लीपिंग सिंस दे लास्ट टॉक्ड अबाउट इट, और क्या तुम सो रहे थे जिस वक्त हम बात कर रहे थे? It seems to her that the hope now awakes only to look pale and sickly. ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो होप है वो सिकली हो गया, पेल हो गया एट द थॉट ऑफ कंटेम्पलेटेड मर्डर, ये सोच के ही कि मर्डर के बारे में. Thus she compares Macbeth with a drunkard who makes a lot of vain boast in his inebriated condition. Students, please note, inebriated means drunken condition. वो उसकी जो हालात है, उसकी जो सिचुएशन है, वो उसे मतलब वो उस शराबी से कंपेयर कर रही हैं जो बहुत सारे वेन, मतलब बेकार के जो है हाँकते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट हु becomes sober after a sound sleep begins to feel ashamed of his folly and of his vain bragging. और जो बाद में जो अपनी नींद से उठे उन्हें याद आता है कि अरे मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. कहीं ऐसा तो मैकबेथ का हाल नहीं है. In short, she is chastising. Students, please note, chastising means rebuke Macbeth for his lack of willpower and want of firm determination to execute a cherished plan to attain something great and glorious. वो उन्हें उस चीज़ के लिए बहुत ही रिब्यूक कर रही हैं, ताना मार रही हैं, और वो ये चाहती हैं कि वो अपने काम में आके डिटर्मिन हो जाए ताकि वो जो ग्रेट और ग्लोरियस यानी किंग बन जाए.
Critical comments. We again find evidence of Lady Macbeth's strength of will and purpose in these lines. She attacks her husband's uncertainty with a series of questions and the right note of encouragement. वो अपने हस्बैंड को बहुत सारे ही बातों से अपने हस्बैंड को समझाती हैं और क्वेश्चंस पूछती है और उन्हें इनकरेज करती है इन शॉर्ट. From this time, such I account thy love, art thou of fear to be the same in thine own act and valor as thou art in desire. तो वो अब यहाँ ये भी कह रही हैं कि मैं अब तुम्हारे प्यार को भी ऐसा ही समझूंगी जैसा कि तुम्हारा अभी यहाँ पे, जैसे कि तुम एक शराबी अपने मिस्ट्रेस से प्यार का इजहार करते हैं और उन्हें प्यार का वादा करते हैं, मैं तुम्हारा अभी प्यार को भी ऐसा ही समझूंगी. आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके के उन्हें प्रोवोक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं. Wouldst thou have that which thou esteemest the ornament of life, and live a coward in thine own esteem? Letting I dare not wait upon, I would like the poor cat in the adage. In the adage. Students, I shall explain you these lines. After hearing from Macbeth that he does not want to proceed in the nefarious business of murdering the king. Students, please note nefarious here means criminal action and thereby risking the great popularity he has recently won. और यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है कि जैसे कि मैकबेथ उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो इस गलत काम में नहीं आएंगे और अपनी जो नई पॉपुलैरिटी उन्होंने जो पाई है वो नहीं खोना चाहते हैं. लेडी मैकबेथ स्कोल्ड्स हिम इन अ फियरी स्पीच फॉर हिज इररेजोल्यूशन. और उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा अपने एक तरह का वो डांटती हैं उन्हें. She ignores her husband's explanation and instinctively attacked him on a point where he is most weak. और वो उन्हें सारे उनके एक्सप्लेनेशन को वो सुनना ही नहीं चाहते और उन्हें वहाँ अटैक करती हैं जहाँ वो बहुत कमज़ोर हैं. Hence she accuses this brave soldier of abject cowardice. Students, please note abject here means extremely degrading. वो यहाँ पे वो एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर और यहाँ पे उन्हें वो कावर्ड कह रही हैं, यानी कि कायर कह रही हैं. शी फील्स दैट द सोर्स ऑफ हिज रिलक्टेंस टू बी हिज irresolutions and fear. She knows very well that he has all along cherished the ambition of usurping the throne. वो ये बहुत अच्छे से जानती है कि उन्हें किंग बनना था. Now she challenges him to admit that though he really wants to have that crown, which he regards as the consummation of his life, great ambition. वो यहाँ पे उन्हें समझाती है कि ये तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन है. Yet he is too much of a coward to perform the necessary action to gain his goal. पर यहाँ वो एक कायर की तरह पीछे भाग रहे हैं कि उन्हें अपना गोल को नहीं पाना है, वो डर के पीछे भाग रहे हैं. She declares that by his irresolution and lack of courage, he is revealing himself to be as contemptible a creature as the proverbial cat. Students, please note contemptible here means being worthless. यहाँ पे वो उन्हें कैट से कंपेयर कर रही हैं एक मुहावरे से, जो एक मुहावरा है विच डिज़ायर टू कैच एंड ईट फिश बट वुड नॉट वेंचर नियर द वाटर फॉर फियर ऑफ वेटिंग इट्स फीट. जो एक फिश को तो खाना चाहते हैं पर वो समुंदर में पर वो नहीं कूदना चाहते इस डर से कि उनका पैर कहीं भीग ना जाए. तो वो मैकबेथ को एक फिश से कंपेयर कर रही हैं. Critical comments. At this justice approach, once again, Lady Macbeth is the person of four witches. यहाँ से ये भी पता चलता है कि Lady Macbeth ही वो fourth witch है. Lady Macbeth has a sound knowledge of human psychology. उन्हें human psychology का बहुत ही अच्छा knowledge है कि किसे कैसे तरह से convince करना है. She irresistibly leads Macbeth on the path of sin and crime. वो उन्हें गलत राह में भटकाती हैं और उन्हें गलत राह में ले जाती हैं. शी टैकल्स हर हस्बैंड सुपर्बली. वो अपने हस्बैंड को बहुत ही सुपर्बली समझाती हैं, टैकल करती हैं. टॉन्टिंग हिम विथ लैक ऑफ करेज एंड ऑफ नॉट लविंग हर ट्रूली. और उन्हें वो दो चीज़ों से ताना मारती हैं. पहला कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है और दूसरा वो उससे प्यार नहीं करते. 2 points ऑन विच ही वुड इमीडिएटली बी हर्ट. और वो उससे इतना प्यार करते हैं कि जाहिर सी बात है कि वो खुद को कावर्ड भी नहीं सुनना चाहते और खुद को तकलीफ भी नहीं देना चाहते. At this stage, there is no sign of any vulnerability to guilt feeling in Lady Macbeth. Students, please note, vulnerability here means the state of being attacked. और इस point of time में वो अपनी वाइफ से अटैक नहीं होना चाहते और वो उन्हें गिल्ट फीलिंग भी करवा रही हैं. तो students, Act 1, Scene 7, I shall explain you on my next video.
Till then, stay tuned. Thanks for watching. Thank you.